बच्चों, आप कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप लोग मेरे एसएमएस को फॉलो कर रहे हैं। मेरा एसएमएस आपको याद में है ना? वो एसएमएस क्या है? मास्क, सोशल डिस्टेंस। ये एसएमएस को हमेशा फॉलो करो और घर में सुरक्षित से रहो, ठीक है? आज हमारे क्लास में पाठ 4 ईद का त्योहार पाठ के बारे में देखेंगे। आज हमारे क्लास में पाठ 4 ईद का त्योहार पाठ के बारे में देखेंगे। त्योहार का मतलब फेस्टिवल। त्योहार का मतलब क्या? फेस्टिवल। ईद का त्योहार, ईद का त्योहार, फेस्टिवल ऑफ ईद, फेस्टिवल ऑफ ईद। इस पाठ के बारे में अब हम देखेंगे। ईद इज एन important festival of Muslims in the month of Ramadan. Eid is an important festival of Muslims in the month of Ramadan. Ramadan is the name of a month in the 12 months of Muslims and is considered very holy. Ramadan is the name of a month in the 12 months of Muslims and is considered very holy. People of the Muslim community of the whole world celebrate this day with great pomp and show. People of the Muslim community of the whole world celebrate this day with great pomp and show. Ramadan is a holy month for Muslim community. All Muslims fast every day throughout the month until the moon of Ramadan appears. Ramadan is a very holy month for Muslim community. All Muslims fast every day throughout the month until the moon of Ramadan appears. When the moon appears in the sky on the last day of the month of Ramadan, Eid is celebrated on its second day. When the moon appears in the sky on the last day of the month of Ramadan, Eid is celebrated on its second day. Bathing in the morning, wearing new clothes, using perfume, eating dates before going to Eidgah is the main among the rituals on this day. Bathing in the morning, wearing new clothes, using perfume, eating dates before going to Eidgah is the main among the rituals on this day. People make delicious sweets in their homes and distribute them to their neighbors and relatives. People make delicious sweets in their homes and distribute them to their neighbors and relatives. On this holy day, a large number of Muslim followers gather in the Eidgah. On this holy day, a large number of Muslim followers gather in the Eidgah, a large open ground for special Eid prayers to offer prayers. A large open ground for special Eid prayers to offer prayers. At the same time, people get hugs from their relatives and others. At the same time, people get hugs from their relatives and others saying Eid Mubarak, saying Eid Mubarak. On this holy day, a large number of Muslim followers gather in the Eidgah, a large open ground for special Eid prayers
to offer prayers. At the same time, people get hugs from their relatives and others, saying Eid Mubarak. People organize various activities and get-together functions with friends and relatives. People organize various activities and get-together functions with friends and relatives. A fair is organized at the various places where lots of swings, toys and sweets for children are also found. A fair is organized at various places where lots of swings, toys and sweets for children are also found. People organize various activities and get-together functions with friends and relatives. A fair is organized at various places where lots of swings, toys and sweets for children are also found. This festival is a symbol of the multi-dimensional culture of India. This festival is a symbol of the multi-dimensional culture of India. This festival increases love among the people and removes the feeling of jealousy and hatred from the hearts of people. This festival increases love among the people and removes the feeling of jealousy and hatred from the hearts of people. People of all communities of India happily celebrate this festival with Muslims, which give a message of brotherhood. People of all communities of India happily celebrate this festival with Muslims, which give a message of brotherhood. This festival is a symbol of the multi-dimensional culture of India. This festival increases love among the people and removes the feeling of jealousy and hatred from the hearts of people. People of all communities of India happily celebrate this festival with Muslims, which give a message of brotherhood. क्या बच्चों, आप ईद के त्योहार के बारे में आप अच्छी तरह समझ गया ना? ठीक है, ईद के त्योहार के बारे में आप अच्छी तरह समझ गया. ओके, अब हम पाठ को देखेंगे. अब हम ईद का त्योहार पाठ के बारे में देखेंगे. इस पाठ में आप जैसे एक लड़का है. इस पाठ में आप जैसे एक लड़का है. वो लड़का का नाम है अब्दुल. वो लड़का का नाम क्या है? अब्दुल. अब्दुल क्या कर रहा है ना? अब्दुल उसके प्रिय मित्र रोहन को एक पत्र लिख रहा है. अब्दुल क्या कर रहा है? उसके मित्र रोहन को एक पत्र लिख रहा है. पत्र का मतलब क्या? लेटर. ठीक है, पत्र का मतलब क्या? लेटर. अब्दुल अपने प्रिय मित्र रोहन को पत्र लिख रहा है. अब्दुल क्या कर रहा है? अब्दुल पत्र लिख रहा है. वो किसको पत्र लिखता है? वो उसके मित्र रोहन को पत्र लिख रहा है. ठीक है, अब्दुल रोहन को किसके बारे में पत्र लिखता है ना? अब्दुल के घर में ईद का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया. अब्दुल के घर में ईद का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया. उस त्योहार के बारे में अब्दुल उसके मित्र रोहन को लिखता है.
अब्दुल रोहन को किसके बारे में पत्र लिखता है? अब्दुल के घर में मनाए ईद के त्योहार के बारे में रोहन को पत्र लिख रहा है। ठीक है। वो लड़का का नाम क्या? वो लड़का का नाम अब्दुल है। अब्दुल के मित्र का नाम क्या? अब्दुल के मित्र का नाम रोहन है। अब्दुल क्या कर रहा है? पत्र लिख रहा है। अब्दुल पत्र लिख रहा है। अब्दुल रोहन को वैसा पत्र लिखता है। प्रिय रोहन नमस्ते। प्रिय रोहन नमस्ते। डियर रोहन नमस्ते। यह तो तुम जानते ही हो कि ईद प्रेम और खुशियों का त्योहार है। यह तो तुम जानते ही हो कि ईद प्रेम और खुशियों का त्योहार है। ईद का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यह तो तुम जानते ही हो कि ईद प्रेम और खुशियों का त्योहार है। प्रेम, प्रेम का मतलब लव। प्रेम का मतलब लव। खुशी हैप्पी। खुशी का मतलब क्या? हैप्पी। You know that Eid is a festival of love and happiness. Dear Rohan, Namaste. You know that Eid is a festival of love and happiness. ईद का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। The festival of Eid is celebrated with great pomp. बड़ी धूमधाम। धूमधाम का मतलब क्या? ग्रेट पॉम्प। धूमधाम का मतलब बड़ी धूमधाम का मतलब ग्रेट पॉम्प। ईद कैसा त्योहार है? ईद प्रेम और खुशियों का त्योहार है। ईद कैसा त्योहार है? ईद प्रेम और खुशियों का त्योहार है। ईद का त्योहार कैसे मनाया जाता है? ईद का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ईद का त्योहार कैसे मनाया जाता है? बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक है। रमजान के महीने में रोजे रखते हैं। रमजान के महीने में रोजे रखते हैं। रोजा, रोजा का मतलब फास्टिंग। रोजा का मतलब क्या? फास्टिंग। द मुस्लिम पीपल कीप फास्टिंग इन द रमजान मंथ। द मंथ ऑफ रमजान कीप फास्टिंग। रमजान के महीने में रोजे रखते हैं। किस महीने में? रमजान के महीने में। रमजान के महीने में क्या रखते हैं? रमजान के महीने में रोजे रखते हैं। रोजा, रोजा का मतलब फास्टिंग। 30 रोजों के बाद चांद दिखाई देता है। 30 रोजों के बाद चांद दिखाई देता है। मून अपीयर्स आफ्टर 30 days. 30 रोजों के बाद चांद दिखाई देता है। मून अपीयर्स आफ्टर 30 days. किस रोजों के बाद चांद दिखाई देता है? कितने कितने रोजों के बाद चांद दिखाई देता है? 30 रोजों के बाद। कितने रोजों के बाद? 30 रोजों के बाद चांद दिखाई देता है। 30 रोजों के बाद क्या दिखाई देता है? 30 रोजों के बाद चांद दिखाई देता है। आफ्टर 30 days द मून अपीयर्स। चांद दिखाई देता है। उसके दूसरे दिन ईद मनाई जाती है। ईद इज सेलिब्रेटेड ऑन द सेकेंड डे ऑफ दैट। 30 रोजों के बाद चांद दिखाई देता है।
उसके दूसरे दिन ईद मनाई जाती है। ईद इज सेलिब्रेटेड ऑन द सेकेंड डे ऑफ दैट। ठीक है, हर साल की तरह इस बार भी ईद का त्योहार मनाने के लिए हमारा पूरा परिवार इकट्ठा हुआ था। हर साल की तरह, हर साल, साल का मतलब ईयर, लाइक एवरी ईयर, हर साल की तरह, दैट मीन्स लाइक एवरी ईयर, इस बार भी, दिस टाइम ऑल्सो, ईद का त्योहार मनाने के लिए हमारा पूरा परिवार, परिवार का मतलब फैमिली, परिवार का मतलब फैमिली इकट्ठा हुआ था। इकट्ठा का मतलब क्या? गैदर्ड। इकट्ठा का मतलब गैदर्ड। Like every year, this time also our whole family had gathered to celebrate the festival of Eid. Like every year, this time also our whole family got gathered to celebrate the festival of Eid. ठीक है, फिर क्या था? What was it then? सब मिलकर ईद की तैयारियों में लग गए। सब मिलकर ईद की तैयारियों में लग गए। फिर क्या था? सब मिलकर ईद की तैयारियों में लग गए। What was it then? All of them started preparing for Eid. All of them started preparing for Eid. सभी के साथ मुझे भी छोटे छोटे काम करने में मज़ा आया। सभी के साथ मुझे भी छोटे छोटे काम करने में मज़ा आया। I also enjoyed doing small things with everyone. I enjoyed doing small things with everyone. मज़ा, मज़ा का मतलब क्या? हैप्पी, एंजॉय। घर में तरह तरह की सेवियां बनी। घर में तरह तरह की सेवियां बनी। सभी ईदगाह जाने की तैयारी में जुट गए। सभी ईदगाह जाने की तैयारी में जुट गए। घर में तरह तरह की सेवियां बनी। सभी ईदगाह जाने की तैयारी में जुट गए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्वीट्स मेड in our house. All have started preparing to visit Eidgah. All have started preparing to visit Eidgah. सभी ईदगाह जाने की तैयारियों में जुट गए। हम बच्चे भी मेला देखने के लिए खुशी से झूम उठे। हम बच्चे भी मेला देखने के लिए खुशी से झूम उठे। Children also jumped with joy to see the fair. Children also jumped with joy to see the fair. हम बच्चे भी मेला, मेला, मेला का मतलब क्या? फेयर देखने के लिए खुशी से झूम उठे। Children also jumped with joy to see the fair. मेले में खर्च करने के लिए सभी बच्चों को पैसे मिले। मेले में खर्च करने के लिए all children get money to spend in the fair. खर्च, खर्च, खर्च का मतलब spend. All children get money to spend in the fair. It is called Eidi. All children get money to spend in the fair. It is called Eidi. मेले में
खर्च करने के लिए, मेले में खर्च करने के लिए सभी बच्चों को पैसे मिले। पैसे, पैसे का मतलब क्या? कॉइन्स, रुपया मिले। इसे ईदी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ईदी कहते हैं। ठीक है। हर साल की तरह इस बार भी ईद का त्योहार मनाने के लिए हमारा पूरा परिवार इकट्ठा हुआ था। हर साल की तरह किसका त्योहार मनाने के लिए अब्दुल के पूरा परिवार के लोग इकट्ठा हुआ? ईद का त्योहार। किस त्योहार मनाने के लिए? ईद का त्योहार मनाने के लिए अब्दुल के पूरा परिवार इकट्ठा हुआ था। ठीक है। सब मिलकर किसकी तैयारियों में लग गए? अब्दुल के पूरा परिवार के लोग मिलकर किसकी तैयारियों में लग गए? ईद की तैयारियों में लग गए। ठीक है। घर में क्या बनी? अब्दुल के घर में तरह तरह की क्या बनी? अब्दुल के घर में तरह तरह की सेवियां बनी। सभी ईदगाह जाने की तैयारी में जुट गए। अब्दुल के परिवार के लोग कहाँ जाने की तैयारी में जुट गए? ईदगाह। कहाँ जाने की तैयारी में जुट गए? ईदगाह जाने की तैयारी में जुट गए। बच्चे मेले देखने के लिए खुशी से झूम उठे। बच्चे क्या देखने के लिए खुशी से झूम उठे? मेला, फेयर, मेला देखने के लिए झूम उठे। मेले में खर्च करने के लिए क्या मिला बच्चों को? मेले में खर्च करने के लिए बच्चों को पैसे मिले। मेले में खर्च करने के लिए बच्चों को पैसे मिले। कहाँ खर्च करने के लिए बच्चों को पैसे मिले? मेले में खर्च करने के लिए। ठीक है। इसे क्या कहते हैं? मेले में खर्च करने के लिए बच्चों को पैसे मिलते हैं ना, वो पैसे को क्या कहते हैं? ईदी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? ईदी कहते हैं। ठीक है। मेरा छोटा भाई रहमान सबसे पहले नहा धोकर नया कुर्ता पैजामा और टोपी पहनकर ईदगाह जाने के लिए तैयार हो गया। मेरा छोटा भाई रहमान सबसे पहले नहा धोकर नया कुर्ता पैजामा और टोपी पहनकर ईदगाह जाने के लिए तैयार हो गया। My younger brother Rahman first got ready to go to Eidgah. After taking a bath and wearing a new kurta, pajama and a hat. My younger brother Rahman first got ready to go to Eidgah after taking a bath and wearing a new kurta, pajama and a hat. मेरा छोटा भाई रहमान। अब्दुल के छोटे भाई का नाम क्या? अब्दुल के छोटे भाई का नाम रहमान। अब्दुल के छोटे भाई का नाम क्या? रहमान। वो क्या करता है? वो सबसे पहले नहा धोकर नया कुर्ता पैजामा और टोपी पहनकर ईदगाह जाने के लिए तैयार हो गया। नहा धोकर का मतलब क्या? टेक बाथ। नहा धोकर का मतलब टेक बाथ। नया कुर्ता पैजामा और टोपी पहनकर he wearing a new kurta pajama and a
hat. और रहमान नया कुर्ता पैजामा पहनकर कहाँ जाता है? ईदगाह जाता है। वो कहाँ जाता है? ईदगाह जाता है। ईदगाह जाने के लिए सबसे पहले नहा धोकर नया कुर्ता पैजामा और टोपी पहनकर तैयारी हो गया। रहमान सबसे पहले ईदगाह जाने के लिए तैयारी हो गया। ईदगाह की तरफ जाती हुई टोली देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सब प्यार के रंगों में रंग गए हो। ईदगाह की तरफ जाती हुई टोली देखकर ऐसा लग रहा था। Seeing the group going towards Eidgah, it seemed as if everyone had been colored in the colors of love. ईदगाह की तरफ जाती हुई टोली देखकर ऐसे लग रहा था जैसे सब प्यार के रंगों में रंग गए हो। Seeing the group going towards Eidgah, it seemed as if everyone had been colored in the colors of love. If everyone had been colored in the colors of love. सब जगह खुशियों की चहल पहल थी। सब जगह, everywhere. सब जगह का मतलब क्या? Everywhere. Happiness was everywhere. Happiness was everywhere. सब जगह खुशियों की चहल पहल थी। Happiness was everywhere. ठीक है। ईदगाह में सभी ने नमाज पढ़ी। ईदगाह में सभी ने नमाज पढ़ी और गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। और गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। ईदगाह में सभी ने नमाज पढ़ी और गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। इन ईदगाह everyone read the namaz. In Eidgah, everyone read the namaz and embraced and congratulated each other. And embraced and congratulated each other. ईदगाह में सभी ने क्या पढ़ी? ईदगाह में सभी ने नमाज पढ़ी और गले मिलकर एक दूसरे को क्या बात दी? गले मिलकर एक दूसरे ने मुबारकबाद दी। ईदगाह के बाहर मेला लगा देख बच्चों ने दुकानों पर दावा बोल दिया। ईदगाह के बाहर मेला लगा देख बच्चों ने दुकानों पर दावा बोल दिया। The children attacked the shops after watching a fair outside Eidgah. The children attacked the shops after watching a fair outside Eidgah. ईदगाह के बाहर मेला लगा देख बच्चों ने दुकानों पर दावा बोल दिया। दावा बोल दिया का मतलब क्या? अटैक्ड। दुकान, दुकान का मतलब शॉप्स। द चिल्ड्रन अटैक्ड द शॉप्स आफ्टर वॉचिंग ए फेयर आउटसाइड ईदगाह। मिठाइयों और खिलौनों से सजी दुकानें देखकर मैं भी खुशी से नाच उठा। मिठाइयों और खिलौनों से सजी दुकानों देखकर मैं भी खुशी से नाच उठा। I also happily danced watching the shops adorned with sweets and toys.
I also happily danced, watching the shops adorned with sweets and toys. मैंने और मेरे भाई रहमान ने भी खिलौने खरीदे. मैंने और मेरे भाई रहमान ने भी खिलौने खरीदे. Me and my brother Rahman also bought toys. खिलौना का मतलब क्या? Toys. Me and my brother Rahman also bought toys. ठीक है. ईदगाह में सभी ने नमाज पढ़ी. ईदगाह में सभी ने क्या पढ़ी? नमाज पढ़ी. ठीक है. वो सभी गले मिलकर एक दूसरे को क्या बात दी? सभी गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी. ठीक है. ईदगाह के बाहर क्या लगा? ईदगाह के बाहर मेला लगा. बच्चों कहाँ दावा बोल दिया? बच्चों ईदगाह के बाहर होने वाले दुकानों पर. क्यों? क्योंकि वो दुकानों में सभी तरह के खिलौने, मिठाइयाँ आदि थे. इसलिए सभी बच्चे दुकानों को देखकर उस पर दावा बोल दिया. मिठाइयों और खिलौनों से सजी दुकानों को देखकर सभी खुशी से दुकानों पर दावा बोल दिया. ठीक है. किसको देखकर बच्चों दुकानों पर दावा बोल दिया? खिलौने और मिठाइयों के दुकानों को देखकर बच्चों खुशी से दुकानों पर दावा बोल दिया. अब्दुल और रहमान क्या खरीदे? अब्दुल और रहमान दुकानों से क्या खरीदे? अब्दुल और रहमान भी दुकानों में से खिलौने खरीदे. शाम को अजमल, सोहन और नसीब ईद की मुबारकबाद देने के लिए हमारे घर आए. शाम को अजमल, सोहन और नजीब ईद की मुबारकबाद देने के लिए हमारे घर आए. In the evening, Ajmal, Sohan and Naseeb came to our house to greet Eid. In the evening, Ajmal, Sohan and Naseeb came to our house to greet Eid. शाम को अजमल, सोहन और नज़ीब ईद की मुबारक देने के लिए हमारे घर आए. अब्दुल के घर में कौन कौन आए? अब्दुल के घर में अजमल, सोहन और नज़ीब आए. अजमल, सोहन और नज़ीब अब्दुल के घर कब आए? शाम को. कब आए? शाम को आए. अजमल, सोहन और नज़ीब अब्दुल के घर क्यों आए? अजमल, सोहन और नज़ीब ईद की मुबारकबाद देने के लिए अब्दुल के घर आए. ईद की मुबारकबाद देने के लिए अब्दुल के घर आए. हम सभी ने मिलकर तरह तरह की सेवियां खाई और खूब मस्ती की. हम सभी ने मिलकर तरह तरह की सेवियां खाई और खूब मस्ती की. We all ate different types of सेवियां and had a lot of fun. We all ate different types of सेवियां and had a lot of fun. हमने इस त्योहार को धूमधाम से मनाते हुए विदा किया. हमने इस त्योहार को धूमधाम से मनाते हुए विदा किया. We left this festival celebrating with pomp. We left this festival celebrating with pomp.
मुझे तुम्हारी कमी बहुत महसूस हो रही थी मुझे तुम्हारी कमी बहुत महसूस हो रही थी आई वॉज मिसिंग यू वेरी मच आई वॉज मिसिंग यू वेरी मच मुझे तुम्हारी कमी बहुत महसूस हो रही थी तुम भी इस त्योहार में मेरे साथ होते तो मुझे और भी अच्छा लगता तुम भी इस त्योहार में मेरे साथ होते तो मुझे और भी अच्छा लगता If you were with me in this festival, I would have liked it even more. If you were with me in this festival, I would have liked it even more. अंकल और आंटी को मेरा नमस्ते कहना अंकल और आंटी को मेरा नमस्ते कहना कन्वे माई विशेस टू आवर अंकल एंड आंटी तुम्हारा दोस्त अब्दुल योर फ्रेंड योर लविंग फ्रेंड अब्दुल इस तरह अब्दुल उसके मित्र कौन है अब्दुल के मित्र कौन है रोहन रोहन को ईद के बारे में पत्र लिखता है ठीक है ये पाठ का शब्दार्थ देखेंगे त्योहार त्योहार का मतलब फेस्टिवल पर्व पर्व परिवार परिवार का मतलब फैमिली कुडुम इकट्ठा इकट्ठा का मतलब गैदर एक साथ इकट्ठा का मतलब एक साथ इकट्ठा एक साथ प्रमुख प्रमुख का मतलब मेन प्रमुख का मतलब क्या मेन प्रधान प्रमुख प्रधान ये पाठ का शब्द क्या क्या है त्योहार पर्व फेस्टिवल परिवार कुडुम फैमिली इकट्ठा एक साथ गैदर प्रमुख प्रधान मेन नेक्स्ट उल्टे शब्द ऑपोजिट्स आगे पीछे पास दूर अच्छा बुरा नुकसान फायदा आगे पीछे फ्रंट बैक आगे फ्रंट साइड पीछे बैक पास दूर नियर फार अच्छा बुरा गुड बैड अच्छा बुरा गुड बैड नुकसान फायदा लॉस फायदा प्रॉफिट नुकसान लॉस फायदा प्रॉफिट अच्छा गुड बुरा बैड पास नियर दूर फॉर ऑफ प्लेसेस आगे फ्रंट पीछे बैक नेक्स्ट ये पाठ का सही या गलत रमजान के महीने में रोजा रखते हैं ये वाक्य सही या गलत रोजा रखते हैं इन द मंथ ऑफ रमजान मुस्लिम्स की फास्टिंग इसलिए ये वाक्य सही ही है रमजान के महीने में ही रोजा रखते हैं इसलिए ये वाक्य सही है रहमान ने नहा धोकर पैंट शर्ट पहनी ये वाक्य सही या गलत रहमान कौन है अब्दुल का छोटा भाई वो ही सबसे पहले नहा धोकर क्या पहने
कुर्ता पैजामा और टोपी पहनकर ही ईदगाह जाने के लिए तैयार हो गई। ये वाक्य में वो क्या पहनी कहा है? पैंट सेट। रहमान ने नहा धोकर पैंट सेट पहनी, इसलिए ये वाक्य गलत है। इसलिए ये वाक्य गलत है। वो कुर्ता पैजामा ही पहनी। 30 रोजे के बाद चांद दिखाई देता है, ये वाक्य सही या गलत? 30 रोजे के बाद ही चांद दिखाई देता है, इसलिए ये वाक्य सही ही है। धन्यवाद बच्चों।